Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Etha Classes. In today's session, we will discuss about another topic of formula series, that is solution. तो solution के अंदर कौन कौन से हम formula use कर सकते हैं उसको देखते हैं. So जो basic terms है, that is mass percentage of an element. उसको कैसे calculate करेंगे? So mass percentage of an element क्या होगा? Mass of that element in the compound divided by molar mass of the compound into 100. Now mass of the solute divided by mass of solution into 100. Mole fraction क्या होगा? Number of moles of a particular component divided by total number of moles in the solution. Now molarity will be equal to number of moles of solute divided by volume of solution in liters. Molarity, number of moles of solute divided by mass of solvent in kg. Now moles of an element, mass of an element divided by atomic mass. Mass of an atom will be atomic mass divided by Avogadro number, that is 6.022 into 10 raised to power 23. Now moles of a compound will be equal to mass of the compound divided by molar mass. अगर element का रखेंगे तो हम देख सकते हैं कि mass of element लिखा था हमने divided by atomic mass. जब compound का check करेंगे, moles calculate करेंगे, so mass of compound लिखेंगे divided by molar mass of the compound. Now mass of one molecule will be equal to molecular mass divided by Avogadro number, that is 6.022 into 10 raised to power 23. Now Henry's law, according to Henry's law, we can say that mass of any gas dissolved in any solvent per unit volume is proportional to pressure of the gas in equilibrium with liquid. So mass is directly proportional to pressure, so m is equal to k into p. K is Henry's constant. Now यहाँ से ये जो इक्वेशन है इसको लिख सकते हैं y is equal to m into x. So y एक्सिस के ऊपर हम प्लॉट करेंगे m, x एक्सिस पे प्लॉट करेंगे प्रेशर. और इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं. यहाँ पे जो ग्राफ प्लॉट किया गया है वो क्या है? पार्शियल प्रेशर. ये जो इक्वेशन है इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम. So P will be equal to K into M. So this is on y axis and M will be on x axis. So M और मोल फ्रैक्शन की टर्म में लिखेंगे. So M will be मोल फ्रैक्शन. So पार्शियल प्रेशर को हमने रिप्रेजेंट किया है on y axis और मोल फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट किया है x axis के ऊपर. So जो स्लोप है that will be equal to Henry's constant. Now Raoult's law for binary और ideal solution for volatile liquids. अगर दोनों liquids हैं वो दोनों क्या है? Volatile है. So pressure of a particular liquid in a solution that will be equal to its mole fraction into its pressure in pure state. Similarly, Pb, pressure of B component will be equal to mole fraction of B component into pressure of the pure B component. Now A is more volatile than B. अगर A जो compound है that is more volatile, अगर solution है उसमें A और B है और A is more volatile, then boiling point of A will be less than boiling point of B. और हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं? Total pressure will be equal to sum of the partial pressure according to Dalton's law. So यहाँ से PA plus PB की value put करेंगे. So this will be the result. Now XA और XB क्या है? Mole fraction है. XA is the mole fraction of A in vapor phase और XB is the mole fraction of B. So अगर vapor phase की term में हम calculate करें, so this will be PA is equal to XA into P naught A and XA dash into PT, total pressure. XA dash is the mole fraction of A in vapor phase. Similarly PB, so यहाँ से जो 1 by PT है that will be calculated as this. Now graphical representation करेंगे तो उसमें क्या होगा? हमारे पास में क्या था? PA is equal to P naught A into XA. So यहाँ से हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं. Y is equal to mx, y एक्सिस के ऊपर this one, x एक्सिस के ऊपर this one. So यहाँ से क्या हो गया? एक स्ट्रेट लाइन होगी जो ओरिजिन से पास होगी. तो यहाँ से ये जो लाइन है यहाँ तक, दिस इज द स्ट्रेट लाइन. सिमिलरली अगर PB को रिप्रेजेंट करेंगे, so P naught B into XB, this is on y axis and XB on the x axis. So यहाँ से भी क्या आएगा? PB हो गया और XB हो गया, स्ट्रेट लाइन होगा, ओरिजिन से पास हो गया.
सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, यहाँ से और PB यहाँ तक। नाउ PT क्या हो गया, टोटल प्रेशर विल बी PA plus PB. So this will be the total pressure line. Now ideal solution क्या होता है, जो Raoult's law को फॉलो करता है at all temperatures. Now ideal solution के लिए क्या होगा, delta H mixing will be equal to 0, delta V mixing will be 0, delta S mixing entropy change for mixing will be positive for all process, और delta G mixing will be negative for spontaneous process. आइडियल मिक्सचर कौन कौन से हैं, बेंजीन, टॉलिन, हेक्सेन, हेप्टेन, C2H5Br plus C2H5I. नाउ नॉन आइडियल सॉल्यूशन वो होते हैं जो रोल्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं। इसमें हम टू टाइप के सॉल्यूशन को स्टडी करते हैं, वन इज पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं, जो दूसरे हैं वो नेगेटिव डेविएशन शो करेंगे। तो पॉजिटिव डेविएशन में क्या होगा कि जो टोटल प्रेशर होगा सॉल्यूशन का, दैट विल बी ग्रेटर देन PA plus PB. सो हम PT, अभी तक हमने आइडियल में क्या लिखा था, PA plus PB लिखा था, PA को क्या लिखा था, P नोट A XA plus P नोट B XB. सो यहाँ से हम क्या लिखेंगे कि जो नॉन आइडियल सोल्यूशन है पॉजिटिव डेविएशन में, उसमें दिस विल बी द इक्वेशन। नाउ यहाँ पे क्या होता है पॉजिटिव डेविएशन में कि जो AA जो मॉलिक्यूल्स है उनके बीच में जो इंटरेक्शन है, या BB जो मॉलिक्यूल के बीच में इंटरेक्शन है, दैट इंटरेक्शन इज वेरी वीक, that interaction is greater than AB. So weak force of interaction होते हैं AA और BB के बीच में। Now delta H mixing will be positive, delta V mixing will be positive, delta S mixing will be positive, और spontaneous process है, so delta G will be negative. These are the examples of positive deviation and this is the graph. ग्राफ सेम है, हमने पहले आइडियल सॉल्यूशन के लिए प्लॉट किया था। सो दिस इज द लाइन फॉर द आइडियल केस। पॉजिटिव डेविएशन है तो क्या हो जाएगा, ग्राफ ऊपर की साइड शिफ्ट हो जाएगा इस तरह से। सिमिलरली ये जो थी टोटल प्रेशर की लाइन थी PT, इसको हमने क्या किया है, इस तरह से शिफ्ट किया है। सो P नोट A इज ग्रेटर देन P नोट B. For negative deviation, total pressure will be less than XA, P नोट A, XB, P नोट B. Now A और B का जो इंटरेक्शन है, this is the condition for the interaction. Delta H mixing will be negative, delta V mixing will be negative, delta S mixing will be positive, delta G mixing will be negative. These are the examples of negative deviation. Negative deviation में क्या होता है, जो भी दो सॉल्वेंट हमने यूज किए हैं, जो भी दो कंपोनेंट यूज किए हैं, उनके बीच में फोर्स ऑफ इंटरेक्शन आ जाएगा। मतलब क्या है कि इंडिविजुअली A का फोर्स ऑफ इंटरेक्शन और B का फोर्स ऑफ इंटरेक्शन और AB का फोर्स ऑफ इंटरेक्शन। तो यहाँ पे क्या होगा, AB का फोर्स ऑफ इंटरेक्शन है। जैसे यहाँ पे ये जो केस है, इसमें क्या है, इंडिविजुअली इनके फोर्स ऑफ इंटरेक्शन और जो यहाँ पे जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन है, दिस फोर्स ऑफ इंटरेक्शन इज मोर। सो यहाँ से ये क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इसी वजह से ये ग्राफ है, ये इस तरह से ऐसे शो किया हुआ है। सो यहाँ पे क्या चेक करना है, नेगेटिव डेविएशन उनमें होगा जिनके अंदर A और B के अंदर जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन है, दैट विल बी ग्रेटर देन AA और BB फोर्स ऑफ इंटरेक्शन। नाउ इमिसिबल लिक्विड क्या होगा, P टोटल क्या होगा, PA प्लस PB, जो हमने आइडियल सॉल्यूशन लिया था। PA इज इक्वल टू P नोट A XA, XA अगर 1 है तो P नोट A के इक्वल हो गया। सिमिलरली PB भी P नोट B के इक्वल होगा अगर X भी 1 हो गया। P टोटल कितना हो गया, इसके अकॉर्डिंग P नोट A प्लस P नोट B, और यहाँ से हम ये कैलकुलेट कर सकते हैं। So this is the graph for the immiscible liquid. Boiling point of the solution is less than individual boiling point of both the liquids. Now abnormal colligative properties. Abnormal जो colligative properties है उसमें हम Vento factor को consider करेंगे। Vento factor क्या होगा, I will be equal to experimental या observed या actual या abnormal value of colligative property divided by theoretical value. सो I है, अगर I की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, सो मीन्स क्या हुआ है, मॉलिक्यूल का डिसोसिएशन हुआ है इन सॉल्यूशन। अगर I इज लेस देन 1 है, मीन्स मॉलिक्यूल का एसोसिएशन हुआ है। I इज इक्वल टू पाई इज फॉर ऑस्मोटिक प्रेशर, पाई एक्सपेरिमेंटल डिवाइडेड बाय पाई थियोरेटिकल। दिस इज द फॉर्मूला फॉर द
osmotic pressure. Pi is the osmotic pressure, that is equal to I is Ventov factor, C is molarity, R is gas constant and T is the temperature. Now अगर डिफरेंट कंपोनेंट है, अगर एक सॉल्यूशन है उसमें 3 तरह के कंपोनेंट्स हैं, तो यहाँ पे पाई विल बी इक्वल टू I1 C1 प्लस I2 C2 प्लस I3 C3 अप टू जितने भी कंपोनेंट्स हैं इनटू RT. Now relation between I and alpha. Alpha is the degree of dissociation. So अगर हमारे पास में कोई कंपोनेंट है A और वो डिसोशिएट हो गया N into B टाइप्स में. So N is number of fragments. Suppose A है वो डिसोशिएट हो गया 2 into B. So N is 2. So इस तरह से जो डिग्री ऑफ डिसोशिएशन है वो इस तरह से जो I है that will be equal to 1 plus N minus 1 into alpha. Now relation between degree of dissociation B बीटा, दिस इज फॉर एसोसिएशन के लिए हमने बीटा से रिप्रेजेंट किया है और आई, तो इस तरह से ये होगा. इसके अंदर क्या हुआ है कि ए जो मॉलिक्यूल है वो एसोसिएट होके मतलब एन ए है दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू बी. तो यहाँ से क्या हुआ है ये कैलकुलेशन हुई है. नाउ रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर. रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर में क्या होगा, वेपर प्रेशर इज इक्वल टू पी सॉल्यूशन इज लेस देन पी. लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या है कि जो हमने सॉल्यूशन लिया है उसका वेपर प्रेशर है दैट विल बी लेस. सो दिस इज द लॉवरिंग. रिलेटिव लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर विल बी इक्वल टू डेल्टा पी डिवाइडेड बाय पी. अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ दिस विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट. नाउ अगर हम यहाँ से n is very greater than small n, so यहाँ से this will be negligible और ये क्या आ जाएगा सॉल्यूशन होके इस तरह से ये फॉर्मूला बनेगा. सॉल्यूशन अगर एसोसिएट होता है या डिसोसिएट होता है तो उसके लिए क्या करेंगे हम, जो x था उसके पहले क्या लगा देंगे, I लगाएंगे, मीन्स जो वेंटो फैक्टर है उसको काउंट करेंगे. ना अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ दिस वन अल्टरनेट फॉर्म क्या हो सकता है जो हमने अभी निकाला है रिलेटिव लॉवरिंग. सो रिलेटिव लॉवरिंग हो गया इस तरह से, दिस इज डेल्टा पी कि प्योर सॉल्यूशन का प्रेशर माइनस मतलब प्योर सॉल्वेंट का प्रेशर माइनस सॉल्यूशन का प्रोसेस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर. नाउ ऑस्टवाल्ड वॉकर मेथड एक्सपेरिमेंटल और लैब डिटर्मिनेशन. सो इसमें क्या होगा, loss in weight of solvent divided by loss in weight of solution will be equal to P minus PS divided by PS. This is the formula. Now elevation in boiling point. अगर कोई solution है उसके अंदर हमने कोई भी non volatile solute ऐड किया तो boiling point increase करेगा और freezing point क्या करेगा, decrease करेगा. So boiling point कितना increase करेगा, that will be calculated by this formula delta TB is equal to I into KB into M. KB is elevation constant, इसको हम इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं. सिमिलरली जो डिप्रेशन है, डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट विल बी डेल्टा TF इज इक्वल टू I इंटू KF. KF इज फ्रीजिंग कांस्टेंट, KF है उसको ये जो मेथड है ये जो फॉर्मूला है इससे कैलकुलेट कर सकते हैं. ना ऑस्मोटिक प्रेशर को हमने पहले भी देख लिया है, दैट इज पाई इज इक्वल टू CRT. बट इन डेंसिटी के टर्म में क्या लिख सकते हैं, pi is equal to rho GH, that is rho is density of the solution, H is the equilibrium height. Now Ventov formula for calculation of osmotic pressure, that is equal to pi is equal to CST. Now pi is equal to CRT, C को क्या लिख सकते हैं, N by V RT, this is CRT. Concentration of all the particles will be equal to C1 plus C2 plus C3. सो यहाँ से कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स चेंज होंगे सबके, बाकी वॉल्यूम तो पूरे सॉल्यूशन की सेम है. सो N1 प्लस N2 प्लस N3 डिवाइडेड बाई V. अगर V1 वॉल्यूम है C1 कॉन्सेंट्रेशन की और V2 वॉल्यूम है C2 कॉन्सेंट्रेशन की, सो दिस वन विल बी द फाइनल फॉर्मूला फॉर कैलकुलेशन ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर. टाइप ऑफ सॉल्यूशन, 3 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन होंगे. आइसोटोनिक सॉल्यूशन जिसमें दोनों सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होगा. हाइपरटोनिक सॉल्यूशन जिसमें फर्स्ट सॉल्यूशन इज हाइपरटोनिक विद रिस्पेक्ट टू सेकंड सॉल्यूशन. हाइपरटोनिक का मतलब क्या है कि जो सॉल्यूशन हाइपरटोनिक है मतलब उसका ऑस्मोटिक प्रेशर मोर है देन द सेकंड वन. हाइपोटोनिक का मतलब क्या है कि जो सेकंड सॉल्यूशन है वो हाइपोटोनिक है, मतलब उसका जो ऑस्मोटिक प्रेशर है दैट इज सेकंड सॉल्यूशन. यहाँ पे जो हाइपरटोनिक था उसमें क्या था, फर्स्ट सॉल्यूशन इज हाइपरटोनिक देन सेकंड
सो यहाँ पे जिसका कम है दैट दिस इज हाइपोटोनिक. सो दिस इज हाइपर, जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा है. हाइपो कौन सा होगा? सेकेंड, जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर कम है.